Hello students, good evening to all of you. So here I am going to solve this problem of NCERT exercise current electricity and in this problem हमें solve करना है determine the current in the each branch of the circuit. So circuit आपके पास इस तरह से कुछ दे के रखा है. So let's suppose the current from the battery is let's suppose it is I1 plus I2 and here let's suppose हम current भेज देते हैं out of that I1 और यहाँ भेज देते हैं हम I2. Okay, we are distributing the current there and let's suppose this current is I3 in this branch from B to जो भी इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं बी ओ नाम रख लेते हैं फ्रॉम बी टू ओ एंड यहाँ जो बचेगा करंट स्टूडेंट्स वो बचेगा आई वन माइनस आई थ्री. ओके, सो दिस इज आई वन माइनस आई थ्री एंड यहाँ पर हमारे पास करंट होगा आई टू प्लस आई थ्री. सो दिस इज आई टू प्लस आई थ्री एंड यहाँ मिलने पर जो है बेसिकली आई थ्री से आई थ्री कैंसिल हो जाएगा और अगेन वी हैव I1 plus I2. So this is the distribution of current in the various branches of the circuit. So let's take some of the loops there and use the Kirchhoff law and get the answer. So first of all, I am taking the loop that is A B O A. Let's suppose इस loop का नाम है A B O A. So I am going from A to B. So here there is a current of like current I1 from the 10 ohm. So I will write simply 10 I1. And then I am going from B to O. So it is also in my direction. In which direction I am traversing the loop there. So this current is also going in this direction, so I will simply write 5I 3 and then I'm going from O to A, so current is going in the opposite direction, so I simply write minus 5I2 is equal to 0. So that is my first loop. इसे मैं starting में simplify करके लिख लेता हूँ. It is like I can take 5 common, so it is 2I1 plus I3 minus I2 is equal to 0. So that is our first loop जो कि हमने ले लिया है. So this is our first loop. इसे मैं equation 1 नाम देता हूँ. Then students I am going to take another loop. Let's suppose जो loop मैंने लिया है वो है B C O B. That is the second loop there. So I will again use the Kirchhoff voltage rule there. So it is simply I1 minus I3 and it is being multiplied with 5 ohm. So this is 5 and then I am going from C to O. Current is opposite to me, so I will write minus I2 plus I3 multiplied with 10 and then from O to B it is written as minus 5 I3 is equal to 0. So that is our second equation, but I will first simplify it. So it is written as 5 I1 minus 5 I3 minus 10 I2 plus 10 I3 minus 5 I3 equal to 0. I will simply solve it like it is 5 I1, there is no I1 there except this, so it is 5 I1, it is 5 I3 and minus 5 I3, so it is also 10 I3, so it is like minus 10, just a minute, it is like minus 5 I3 and it is basically minus there students, it is minus, so when we open that it will become negative, it will be negative there. Okay, because मैंने इसे multiply तो कर दिया 10 से, but sign is also there, negative sign is there, so it is minus 10 I3 minus 5 I3 equal to 0. So it is 5 I1 minus 5 I3 minus 10 I3 minus 5 I3, ये बन जाएगा बेसिकली अपने पास minus 20 I3, it is minus 20 I3 and यहाँ पर अपने पास I2 भी है एक, so that is minus 10 I2 and it is equal to 0. So इसको further simplify कर लेते हैं. It is simply written as I1 minus 5 4 is 20, so it is 4 I3 minus 2 I2 equal to 0. So that is our students second equation जो कि हमने दूसरे लूप से निकाल के रखा है. सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. अब एक और लूप कंसीडर करते हैं. यहाँ हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई करके लिख लिया है. अगला लूप हम जो यहाँ से कंसीडर करेंगे वो रहेगा ए बी सी. लेट सपोज इसको मैं ई देता हूँ यहाँ नाम. सो इट इज़ बेसिकली ए बी सी ई इंटू ए. सो ये सबसे बड़ा लूप जो है हमने कंसीडर कर लिया. इक्वेशन लिखेंगे हम सिंपली अगेन ए से बी चलेंगे. इट इज़ लाइक 10 I1 and it is plus I1 minus I3 multiplied by 5. Okay, it is I1 minus I3 multiplied by 5. This is 5 there. और आगे चलते हैं. यहाँ पर we have a battery and we encounter the negative terminal. So on the other side of equation we'll simply write it as positive 10. और आगे चलते हैं. It is I1 plus I2 through the 10 ohm. So we'll write it as plus 10 I1 plus I2. So we'll simplify it. थोड़ा simplify कर लेते हैं. देखिए ये है 10 I1 और ये भी है 10 I1. Okay, so 10 I1 plus 10 I1 हो जाएगा 20 I1, but it is also I1 there, so it can be written as 25 I1 and after that it is minus I3 है basically, so it is minus 5 I3
और I2 अपने पास यहाँ पर जो है वो एक ही है, प्लस 10I2 इज इक्वल टू 10। अगेन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, सो इट इज़ लाइक 5I1 एंड इट इज़ माइनस I3 प्लस 2I2 इज इक्वल टू, सो हमने 5 लिया है, सो इट इज़ 2 देयर। सो दिस इज़ अवर थर्ड लूप देयर। ओके, सो ये हमारा थर्ड लूप है जो हमने निकाल लिया यहाँ से यूजिंग दीज किरचॉफ वोल्टेज रूल्स। देन हम यहाँ से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो अपना पहला इक्वेशन है वहाँ से I2 निकाल लेते हैं। यहाँ से हमें I2 मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू I3 प्लस 2I1। सो ये जो I2 है ये हमें मिल गया I3 और I1 की टर्म्स में। इसे लेकर के हम यहाँ इक्वेशन 3 में सबस्टिट्यूट कर लेंगे और कुछ रिलेशंस यहाँ पर फॉर्म कर लेंगे, या मे बी हम इसका इस्तेमाल जो है इस वाली कंडीशन में भी कर लेते हैं और कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं I2 और I3 की टर्म्स में। सो लाइक ये रिलेशन आप देख रहे हैं, मैं इसमें सबस्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, इसे इक्वेशन 1 को 2 में सबस्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। सो दिस इज़ I1 माइनस 4 इंटू I3 माइनस 2 इंटू I2 की वैल्यू जो है वो है I3 प्लस 2I1 एंड इट इज़ इक्वल टू 0। सो विल सॉल्व दैट, ये बन जाएगा I1 माइनस 4I3 माइनस 2I3 and it is minus 4I1 equal to 0. Then we will solve it. It is like I1 और माइनस 4I1 बन जाएगा माइनस 3I1 हमारे पास, माइनस 4I3 और माइनस I3 हो जाएगा माइनस 6I3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3I1 इज इक्वल टू 6I3 प्लस के साइन के साथ। सो इट इज़ सिंपली I1 इज इक्वल टू 3 टू 6, सो 2I3 बट इट इज़ नेगेटिव। सो ये एक और रिलेशन हमने I1 और I3 का आपस में निकाल लिया है। लेट सपोज इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम देता हूँ। सो हमें एक और रिलेशन जो है I1 और I3 के बीच में मिल चुका है। देन हम ये काम कर सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशंस हैं, जो भी जितनी भी इक्वेशंस हैं, उनको किसी दो की टर्म्स में लिख सकते हैं और देन वी कैन सिंप्लीफाई दैम। तो मैं यहाँ से I1 को वहाँ भरना जा रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में सबस्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। आई विल पुट दैट I3, लाइक मैं I3 को या I1 को I3 की टर्म्स में पुट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा 5 और I1 की जगह माइनस 2I3। सो देर आर वेरियस वेज यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। सो इट इज़ माइनस 2I3 minus I3 plus 2I2 is equal to 2. So from here we will get minus 10I3. Okay students, minus 10I3, and then again we have another I3 there and it is plus 2I2 is equal to 2. So ये आ जाएगा हमारे पास minus 11I3 plus 2I2 is equal to 2. So from here also we can get the answer for that I2 in terms of I3. यहाँ तक हम इसे थोड़ा रोक लेते हैं, इसे यहाँ तक नोट कर लेते हैं। दैट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 5. सो दिस इक्वेशन इज़ फॉर I3 I2, और यहाँ से भी हम कोई रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक इस रिलेशन को भी यूज़ कर सकते हैं दैट इट वाज 2I1 प्लस I3 माइनस I2। हमारे पास स्टूडेंट्स I3 की वैल्यू I1 की टर्म्स में आ गई। देखिए ये I3 और I2 की टर्म्स में है, हम इस एक्सप्रेशन को भी I3 I2 की टर्म्स में लिख सकते हैं। लाइक मैं I1 को लिख सकता हूँ फ्रॉम हेयर, ये हमारे पास वैल्यू है। मैं दो इक्वेशन फॉर्म करने जा रहा हूँ, दोनों को ही मैं I3 I2 की टर्म्स में लिखूंगा। लाइक दिस इज I3, दिस इज I2। आई विल पुट दैट I1 इन टर्म्स ऑफ I2 एंड I3। ओके, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। सो दैट इट इज़ लाइक I1। ओके, देखिए यहाँ से आप I1 को क्या लिख सकते हो, आप I1 को लिख सकते हो स्टूडेंट्स माइनस 2I3। यू कैन पुट I1 एज माइनस 2I3। तो मैं इधर पुट कर रहा हूँ I1 को माइनस 2I3। I1 की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया माइनस 2I3 माइनस 4I3 एंड इट इज माइनस 2I2 is equal to 0. So it will be written as minus 6I3 minus 2I2 equal to 0. So this is another equation जो कि हमें I3 और I2 की टर्म्स में मिल चुकी है। नाउ हम इन दोनों को, इसको मैं 6 नाम दे देता हूँ। नाउ वी कैन सॉल्व देम। सो इट इज़ माइनस 11I3 प्लस 2I2 is equal to 2, and then one other equation is minus 6I3 minus 2I2 is equal to 0. So let's simply add these equations. ऐड करने पर ये कट जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और it is basically minus 17I3
is equal to 2. So we can say that I3 is equal to -2/17. तो यहाँ से हमें I3 की वैल्यू मिल चुकी है. That is, this is the answer for this I3. Okay, that is -2/17. Now हम यहाँ से I1 भी निकाल सकते हैं. So I1 की वैल्यू है -2 times I3. So what is I3? -2/17. So that comes out to be 4/17 करंट. दिस इज द करंट I1. और अगेन लाइक अब I2 भी निकल जाएगा बहुत आसानी के साथ, बिकॉज हमने कोई रिलेशन I2 की टर्म्स में भी लिखा हुआ था, दैट इज़ I2. और अगर कहीं और भी लिखा है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप. सो दैट I2 इज़ I3 + 2I1. I2 इज़ I3 + I2 + 2I1. So you will put the values there. I2 is equal to, what is I3? I3 is basically -2/17 students plus 2 into I1 is 4/17. So 17 LCM आ जाएगा. It is -2 + 8. So it is simply 6/17. So that is the value of I2. Okay. हम सर्किट में जाएंगे. अब आई थिंक आप हर एक में करंट निकाल सकते हो. I1 I2 आपको मिल चुके हैं, तो इस ब्रांच में भी निकाल लेंगे. I1 आपको मिल चुका है, I2 मिल चुका है, I3 मिल चुका है, I1 - I3. So you can simply solve these and get the answer for I1, I2 and I3. So basically in this question you have to take 3 loops there. I take 3 loops there, like ABOA, and other one is BCOA, BCOB, and then I take ABCEA. So okay, I take 3 loops there. Simplify these 1 or 2 loops, and यहाँ से I1, I2, I3 के टर्म्स में किसी का रिलेशन लिखा, और थर्ड इक्वेशन में सबशूट करके अल्टीमेटली एलिमिनेशन मेथड या जनरली सिंपली रेशो लेके इक्वेशन को सॉल्व किया है. सो दीज आर द आंसर्स. थैंक यू.